नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी ख़ुने में आप सबके इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। आरएसएस और खुफिया एजेंसी रा पर पाबंदी लगाने की अमरीकी कमीशन की मजम्मत, मुल्क की मुमताज़ शख्सियत ने कड़ी तनकीद की। फिरकावाराना बयानबाजी की बजाय गंगा की सफाई पर ध्यान दें, यूपी की काबीना वजीर को अखिलेश यादव ने बनाया निशाना। रुपए की कदर में गिरावट पर संजय रावत का मोदी पर तंज, कहा करेंसी गिरती है तो मुल्क की इज्जत गिरती है। बदतरीन महंगाई से दो चार हो जाएगा हिंदुस्तान, राहुल गांधी का रिमार्क। असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन की सख्त हिदायत, हर पोलिंग बूथ पर बुनियादी सहूलियात लाजमी बरकरार। नई नीति सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। 275 मुमताज़ शख्सियात पर मुश्तमिल एक ग्रुप, जिसमें 25 रिटायर्ड जजेस, 119 साबिक ब्यूरोक्रेट्स और 131 मुसल्लह अफवाज के अफसरान शामिल हैं, ने हफ्ते के रोज़ अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी की रिपोर्ट पर यानी USCIRF मजहबी आज़ादी की तनकीद की। इस रिपोर्ट में अमेरिका से मुतालबा किया गया था कि वो भारत की खुफिया एजेंसी रा पर यानी RSS और राष्ट्रीय सेवक संघ मजहबी अक़लियतों के साथ मुबैना इम्तियाजी सलूक के हवाले से पाबंदियाँ आयद करे। अमरीकी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि हिंदुस्तान का सियासी निज़ाम मजहबी अक़लियतों के ख़िलाफ़ इम्तियाजी माहौल को फ़रोग़ देता है। हालांकि आइन में मजहबी आज़ादी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। कमीशन ने रा और RSS के ख़िलाफ़ पाबंदियों की सिफारिश भी की है। ये मामला एक बार फिर हिंदुस्तान और बैनुल-अक़वामी इदारों के दरमियान मजहबी आज़ादी के मौजू पर जारी इख्तिलाफ़ात को उजागर करता है। USCIRF often comes out with such reports. There are 6 members of the USCIRF and government of USA appoints them. Their background should be checked because we have information that some of them come from Pakistan and they have biased view of India. If you talk of religious freedom, Pakistan, when it got independent in 47, independence, it had 21% minority Hindus. Today, 1.5 to 2% Hindus are left. The whole world has witnessed how in Sindh of Pakistan, young girls are kidnapped in front of everyone, forcibly raped, converted, and there are no rights to the families. So if there is a persecution, it is in Pakistan. That's why the numbers have come down from 22% to 1.5 to 2%. Bangladesh. When Bangladesh got independence, it had a 21-22% minor Hindus. Today, 7 to 8% Hindus are left. And whole world saw what happened with the Hindus, how they were persecuted when Muhammad Yunus was caretaker prime minister. So these reports don't talk of them. India has a vibrant democracy. India has independent judiciary, and they are talking of persecution of minorities here. Here, the population of Muslims, which they are referring to, was at the time of independence was 9.5%. Today, the numbers is roughly 20 to 25%. As per 2011 census, the percentage of Muslims was almost 15%. Today, it must be 20 to 25%. So, where is persecution? It is the in Pakistan and Bangladesh that this report does not talk of. So, money of the taxpayers of US citizens is being used to churn out such biased reports, such malicious propaganda against India. Let US look within before they point fingers on India. So it also mentions the imposition of foreign sanctions of RAW and RSS. Absolutely, RSS is a social organization. Whenever there is a disaster, they are the first responders. The RSS is building the character of the youth of this country. They are trying to protect the family structure of and protect them from wokeism. These are the functions which RSS is doing. It is building the family, the society.
and it is a social organization. It doesn't create terrorism, and the terrorism which is being created by organizations, terror organizations in Pakistan, these reports don't talk of. So RSS, there is absolutely no justification. Why should it be banned? It is contributing for the building of Hindu society in India and their sanskars, character building. And I think why should RAW be banned? Why not ISI, which is exporting terrorism all over the world? हिंदुस्तानी रुपए की मुसलसिल गिरती कदर पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस दौरान शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने मरकजी हुकूमत और वज़ीर आज़म मोदी पर सख्त हमला किया। रुपए की कमज़ोरी को मुल्क की शबी और इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल से जोड़ते हुए संजय रावत ने हुकूमत के काम करने के अंदाज़ पर सवाल उठाए हैं। संजय रावत ने अपने बयान में कहा कि सेंचुरी लगेगी, अब के बार 100 के पार। मोदी जी कहाँ हैं? वो मगरबी बंगाल में हैं। ममता बनर्जी को शिकस्त देने के लिए सदर राज की तैयारी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और अमित शाह मगरबी बंगाल में खेला करने की कोशिश कर रहे हैं और रुपए की कीमत मुसलसिल गिरती जा रही है। मोदी कहते थे कि जब रुपए की कीमत गिरती है तो मुल्क की इज्जत गिरती है। मुश्किल हालात के दरमियान लोकसभा में हज़ब इख्तिलाफ के कायद और कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने मरकज़ की मोदी हुकूमत को हदवे तनकीद बनाया। उनका कहना था कि अगर रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में 100 के करीब पहुँचती है और ईंधन मज़ीद महंगा होता है तो इसका बराह रास्त असर आम लोगों की ज़िंदगी पर पड़ेगा। राहुल गांधी ने इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तफसीली पोस्ट शेयर की है जिसमें कुछ अहम हक़ाइक़ सामने रखे हैं। मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए इन्होंने कहा कि ये सिर्फ आधा दुश्मन नहीं बल्कि आने वाली महंगाई की वाज़ेह इशारे हैं। कांग्रेस लीडर के मुताबिक अगर मौजूदा हालात जारी रहे तो पैदावार और नक़्ल हमल की लागत में नुमाया इजाफा होगा, जिसका सबसे ज़्यादा असर छोटी और दरमियानी सनतों MSME पर पड़ेगा। इन्होंने ख़बरदार किया कि रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे आम आदमी की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। इसम्बली इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने तमाम पोलिंग मराकज़ के लिए सख्त हिदायत जारी करते हुए वोटरों की सहूलियात को अवलीन तरजीह देने का फ़ैसला किया है। कमीशन ने वाज़ेह किया कि हर वोटर को बगैर किसी रुकावट के अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करने के लिए साजगार माहौल फराहम किया जाना ज़रूरी है। कमीशन की जानिब से जारी हिदायत के मुताबिक मुल्क भर में क़ायम किए जाने वाले 2,18,807 पोलिंग बूथ पर कम अज़ कम बुनियादी सहूलियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाएगा। इन सहूलियात में पीने के साफ़ पानी, सायेदार इंतज़ारगाह, साफ़ सुथरे बैतुल-ख़ला, मुनासिब रोशनी और माजूर अफराद के लिए रैंप जैसी ज़रूरी इंतजामात शामिल हैं। इसके साथ हर पोलिंग मरकज़ पर वाज़ेह इशारती वोट और मेयारी वोटिंग कमरे भी कायम किए जाएँ ताकि वोटरों को किसी किस्म की उलझन का सामना न करना पड़े। उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत में काबीनी वज़ीर बेबी रानी मौर्य की जानिब से गंगा की सफाई से मुताल्लिक़ अखिलेश यादव के बयान को फ़िरक़ावाराना फ़िसादी करार देते जाने पर समाजवादी पार्टी SP ने सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। पार्टी सरबराह के बयान का दिफा करते हुए समाजवादी पार्टी के तर्जुमान मनोज काका ने रियासती वज़ीर बेबी रानी मौर्य को निशाना बनाते हुए कहा कि उन्हें फ़िरक़ावाराना और फ़िसादी बयानात देना बंद कर देना चाहिए और गंगा की सफाई पर तवज्जो देनी चाहिए। इन्हें अखिलेश यादव के साइंसी नुक्ते नज़र को समझना होगा। SP के तर्जुमान ने मरकज़ी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि तमाम गंगा पर 55,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन हुकूमत हिंद CAG कहती है कि कोई ख़ास नतीजा नहीं निकला। उधर अखिलेश यादव ने बुलडोज़र चलाने की हुकूमत UP के रवैये को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने UP की कानूनी सूरत-ए-हाल को तबाहकुन करार दिया। मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं। आपके माध्यम से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। पूरे देश में खुशी के साथ ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को ईद के त्यौहार की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने त्यौहार होली मनाया था। उसमें हम सब लोग मिलकर के गले मिलकर के एक दूसरे के बीच में जहां गुजिया बांटी थी, खुशियां बांटी थी, वहीं हमारा आज फिर एक और त्यौहार आया है, ईद का त्यौहार, जहां हम फिर गले मिले हैं, सिमैया और मिठाई खाकर के एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। यही हमारी हिंदुस्तानियत है कि जहां अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के लोग रह करके एक साथ त्योहारों को एक साथ मिलकर के खुशियां मनाते हैं। यही हिंदुस्तानियत हमारे समाज और देश को मजबूत बनाती है, देश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाती है। हमें उम्मीद है कि दुनिया में जिस तरह से
वॉर चल रहा है वो तो खत्म हो गई होगा, और उसके साथ वॉर खत्म होते ही खुशहाली भी आएगी, ऐसा हमारा सबका मानना है ईद के त्योहार पर। अखिलेश जी, अभी आपने एक बात कही कि देश के ऊपर शहीद होने वालों का जिक्र हमेशा होता है, जो देश के लिए शहीद होते हैं। कोई देश हो, कोई मुल्क हो, और मुल्क के लिए जो शहीद होता है वो दिलों में याद किया जाता है। सर, मथुरा में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, एक साधु की मौत हुई है। भारतीय जनता पार्टी कहाँ तनाव न पैदा कर दे ये सोचना है। अगर मथुरा में, वृंदावन में, धार्मिक स्थान पर साधु के साथ अगर ये व्यवहार हुआ हो, और वहीं काशी में जहां प्रधानमंत्री कई बार चुने गए हैं, खुलेआम एक छात्र ने एक छात्र को मार दिया, खुलेआम गोलियां चल रही हैं। इससे पहले गोरखपुर में गोरख धंधा होते हुए देखा होगा आपने, वहां भी खुलेआम गोली मार दी। पूरे प्रदेश में जो चाहता है वो कर लेता है, कोई कानून व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं बची है। एयर इंडिया ग्रुप ने इतवार के रोज मगरबी एशिया के लिए और वहां से मजमूई तौर पर 50 परवाजें चलाने का मंसूबा बनाया है। एयरलाइंस ने एक अपडेट में बताया कि वो अपनी झैली कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ मिलकर आज सऊदी अरब के शहर जिद्दा और ओमान के दारुल-हुकूमत मस्कत के लिए कुल 20 बाकायदा परवाजें चलाएगा। इसके अलावा मगरबी एशिया के मुख्तलिफ शहरों से 30 खुसूसी परवाजें चलाने का मंसूबा है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की मस्कत से दिल्ली, कोची, मुंबई और कन्नूर के लिए परवाजें दस्तियाब होंगी, जबकि एयर इंडिया की परवाजें दिल्ली और मुंबई से जिद्दे के लिए होगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद से बेंगलुरु और मंगलुरु के लिए एक और कोझिकोड के लिए 2 परवाजें चला रही है। सऊदी अरब के शहर दमाम से भी कोझिकोड के लिए इसकी एक परवाज होगी। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक ऑनर। आरएसएस और खुफिया एजेंसी रा पर पाबंदी लगाने की अमरीकी कमीशन की मजम्मत, मुल्क की मुमताज शख्सियत ने कड़ी तनकीद की। फिरकौराना बयानबाजी के बजाय गंगा की सफाई पर ध्यान दें, यूपी की काबीना वजीर को अखिलेश यादव ने बनाया निशाना। रुपए की कदर में गिरावट पर संजय रावत का मोदी पर तंज, कहा करेंसी गिरती है तो मुल्क की इज्जत गिरती है, बदतरीन महंगाई से दो चार हो जाएगा हिंदुस्तान, राहुल गांधी का रिमार्क। इसम्बली इंतखाबात के पेश नजर इलेक्शन कमीशन की सख्त हिदायत, हर पोलिंग बूथ पर बुनियादी सहूलियात लाजमी बरकरार। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।